हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल डाईएटॉमिक लैटिस. So, diatomic lattice, that is, which have two atoms per permittive cell, and these are as in case of NaCl and diamond structure. So in diamond structure, these two atoms are both carbon atoms, and in NaCl structure, one is Na positive and another is Cl negative. So in our today's lecture, we will discuss about the vibrations of one dimensional diatomic lattice. Now, as you can see in this picture, it is a chain of one dimensional diatomic lattice. We have considered it in the x direction, and here this dot represent a one atom, and this circle, bigger size circle, represent the another atom. And here the mass of one atom is less than the mass of another atom, and one is represented by small m, and other atom's mass is represented by capital M. So how the vibration of one atom influence the another atom, and how we will deduct the force that is exerting on these atoms which are situated at equilibrium position. So atoms which are located at their equilibrium positions are connected to another atom with the elastic spring, and they are influenced by the atoms which are in neighbor of these atoms. Clear? Now see, in this diatomic lattice, we have marked the position of atoms. As you can see, this position is marked as 2n, and its neighboring position is marked as 2n plus 1. And another next same atom will appear, and this position is marked as 2n plus 1. Now if you move to left side, then the position of this atom which have mass capital M is represented by 2n minus 1, and the atom to its left side neighboring atoms have mass small m, and the position is represented by 2n minus 2. क्लियर? तो अगर आप इन एटम्स की पोजीशनिंग देखेंगे, तो जब हमने मोनो एटॉमिक लैटिस स्टडी किया था, तो हमने एटम की पोजीशन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया. जैसे कि देखिए आप इसमें जब हमने मोनो एटॉमिक लैटिस के लिए स्टडी किया था, तब हमने nth एटम की पोजीशन को n से रिप्रेजेंट किया था. बट अगर आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ डाई एटॉमिक लैटिस, तो हमने यहाँ एटम की पोजीशन को 2n से रिप्रेजेंट किया है. आप देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना है, a है, और 2a डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद सेम एटम अपीयर हो रहा है. जैसे कि आप देखिए कि यहाँ से इस एटम का इस एटम से डिस्टेंस a है, और इस एटम का फिर से ये एटम से डिस्टेंस a है. तो अगर हम 2 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो हमें सेम एटम अपीयर हो रहा है. तो हमने यहाँ पर जो पोजीशन मार्क की है एटम की, वो सपोज अगर ये nth एटम है, तो ये पोजीशन हमने 2n से रिप्रेजेंट की है, विच इज़ नॉट सेम एज दैट वी हैव मार्क्ड इन मोनोएटॉमिक लैटिस. Clear? So let's further see for the equation of motion for each type of atom, कि इनकी equation of motion हम किस तरह से लिखेंगे according to Hooke's law, where force is directly proportional to the displacement. So for this, can see here the force on 2nth atom is equals to the effect of this neighboring atoms. तो इस 2n atom के neighboring atom कौन से हैं? This is atom which is positioned at 2n plus 1, and another atom which is positioned at 2n minus 1. So if we see the influence of these atoms on 2n, then this is the this will depend upon the displacement which occur in the position of these this 2n atom. So this displacement will be equal to 2x2n minus x2n plus 1. यहाँ से देखिए कि अगर सपोज ये एटम इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है और ये एटम इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो कितना इनका डिस्प्लेसमेंट है, दैट विल डिसाइड द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन दिस 2n एटम बिकॉज ऑफ 2n plus 1 एटम. क्लियर? सो अगर हम इस एटम के मूवमेंट की वजह से अगर फोर्स डिफाइन करें कि ये सपोज F पॉजिटिव है, तो ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा? दिस विल बी नेगेटिव बीटा x2n माइनस x2n प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा. दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज़ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. क्लियर? इसी तरह से ये एटम किससे कनेक्टेड है? लेफ़्ट साइड इस एटम से भी कनेक्टेड है. तो हम अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस पर फोर्स निकालें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? दिस F नेगेटिव इज इक्वल्स टू माइनस बीटा दिस
x2n minus because of the displacement of this 2n minus 1 atom. क्लियर. तो अब अगर इस 2n एटम पर टोटल कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस एटम एंड बिकॉज ऑफ दिस एटम. तो हम इन दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे, अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स विच इज़ एक्सर्टिंग ऑन द 2nth एटम. क्लियर. तो ये फोर्स क्या होगा कि अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले लें तो ये बीटा पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, x2n+1 एंड माइनस x2n एंड अगेन वी ऐड दिस minus x2n and this term will become positive and this is x2n minus 1. Clear. तो यहाँ से net force which is exerting on the 2nth atom will be equal to plus beta x2n plus 1 plus x2n minus 1 and minus 2x2n के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से देखिए फोर्स फ्रॉम सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हम किसके लिए देख रहे हैं, 2nth एटम के लिए. तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग, अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखें दिस विल बी मास इंटू डेरिवेटिव ऑफ x2n ओवर में dt². तो यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू बीटा x2n+1 प्लस x2n माइनस 1 माइनस 2x2n के इक्वल आ जाएगा. So this is the first equation of motion for the case of atom which is situated at location 2n. Clear? Similarly, if we find the equation of motion for this atom, we have evaluated equation of motion for atom which have mass small m. Now if we find the equation of motion for atom which have mass capital M, then this is equals to this will be equal to the force exerting on the 2n+1th atom. तो आप यहाँ से देखिए कि अब 2n+1 एटम पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ 2nth एटम की वजह से है और किसकी वजह से है, 2n+2 एटम की वजह से. क्लियर. तो यहाँ ये एटम क्या है, 2n+2. क्लियर. तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट के लिए जब लिखेंगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू में डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट किसके कोरस्पॉन्डिंगली 2n+1 एटम के लिए देख रहे हैं, 2n+1 x2n+1 माइनस x2n+2. क्लियर. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस टर्म के. इसी तरह से अगर हम इस एटम के लिए देखें तो ये जिस तरह ये इस एटम से इन्फ्लुएंस्ड है, इसी तरह लेफ्ट साइड पर ये एटम प्रेजेंट है. तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है वो देखिए, यहाँ से देखिए F नेगेटिव, दिस इज माइनस बीटा दिस x2n+1 माइनस x2n. क्लियर. यहाँ से हम किसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, इस 2n+1 एटम की पर किसका इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं, 2n एटम का. तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगी, x2n+1 माइनस x2n. तो इस तरह से हमने दोनों एटम का फोर्स लिख लिया कि जो 2n+1 एटम पर एक्सर्ट हो रहा है. तो टोटल फोर्स कितना होगा एट द on the atom which is positioned at 2n+1. So this force will be the addition of this F plus and F minus. So ये किसके इक्वल आ जाएगा, again this is minus beta x2n+1 minus x2n+2 minus beta x2n+1 minus x2n के इक्वल आ जाएगा. क्लियर. तो यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये रीअरेंज करें तो बीटा कॉमन लेके हम इसको इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं. तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू बीटा x2n+2 प्लस x2n माइनस में 2x2n+1 के इक्वल. क्लियर. तो यहाँ से देखिए फोर्स अगेन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ किसके इक्वल होगा, md2 x2 2n+1 atom over dt². This is equals to beta x2n+2 plus x2n minus 2x2n+1. तो इस तरह से हमें equation of motion मिल गई for both atoms which have mass small m and capital M. So we have write this equation of motion here. There was some problem, so I have write this value, this force which is equals to md2 x2n over में dt², and here this force is equals to capital M d2x over में dt² 2n.
make it correct that there is a mass of bigger size atom. Clear? So we get two equation of motion for the case of diatomic lattice. Clear? Now if again these are the second order differential equations as we had discussed in the monoatomic lattice, so it have solution equal to a exponential iota omega minus 2kNa. Here you mark this is a 2kNa. क्लियर? इसी तरह सेकेंड इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू x2n+1 इज इक्वल्स टू b एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा टी माइनस 2n+1 के के इक्वल आ जाएगा. क्लियर? आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ जो हमने एम्पलीट्यूड लिया है बोथ केस में डिफरेंट है, बिकॉज दोनों एटम्स का मास भी डिफरेंट है, तो कोरस्पॉन्डिंगली उनके साथ जो एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड होगा वो भी डिफरेंट है. सो टू x2n के लिए एम्पलीट्यूड कैपिटल A है और x2n+2 के लिए एम्पलीट्यूड कैपिटल B के इक्वल है. क्लियर? नाउ अगर हम इस सॉल्यूशन ये इस सोल्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ से डबल डेरिवेटिव लेकर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्दर देखिए किस तरह से इसे सोल्व कीजिए. हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है. तो अगर हम थर्ड इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव लें तो ये डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, आप देखिए यहाँ से टी के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? आयटा omega will come in first derivative and iota omega will come in second derivative. Clear? So this is equals to minus omega square के इक्वल आ जाएगा. क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया विच इज़ d2x2n ओवर में dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा t माइनस 2kNa के इक्वल आ जाएगा. इसी तरह अगर हम इक्वेशन फोर्थ के केस के लिए डबल डेरिवेटिव लें तो ये डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू b एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा t माइनस में 2n+1 के इक्वल. क्लियर? सो अब इन डबल डेरिवेटिव्स को अगर हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्स्टिट्यूट करें, मींस अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमने डबल डेरिवेटिव जो इवेल्युएट किया है इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें. हियर दिस डेरिवेटिव एंड दिस डेरिवेटिव. सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस एंड हेयर x2n+1 किसके इक्वल है? x2n+1 इस टर्म के इक्वल है और x2n इस टर्म के इक्वल है. अब नेक्स्ट देखिए हमें बताना है कि x2n-1 टर्म किसके इक्वल होगी. आप देखिए यहाँ से कि 2n-1 पोजीशन किस एटम की है? दिस इज़ द पोजीशन ऑफ एटम विच हैव मास कैपिटल M. क्लियर? सो कैपिटल M मास के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लिखी है? कैपिटल M मास के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम टू यहाँ टर्म को इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन किसके इक्वल है? फोर्थ के इक्वल है. तो इस इक्वेशन में हम x2n+1 को यहाँ पर ये जो पोजीशन मार्क की है 2n+1 को हम 2n-1 से रिप्लेस कर देंगे. क्लियर? तो इस तरह से आप देखिए अगर हम इसका सोल्यूशन निकालें तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी. सो दिस विल बी m ओमेगा स्क्वायर एंड दिस टर्म. क्लियर? नाउ नेक्स्ट फर्दर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x2n+1. तो ये टर्म किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू दिस विच हैव एम्पलीट्यूड कैपिटल B. Clear? Now next substitute value of x2n-1. Clear? Now x2n-1 is for the capital M atom. So solution of this will be, if we replace here 2n+1 to 2n-1, तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड कैपिटल B है, तो यहाँ इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो कैपिटल B ये टर्म आ जाएगी. क्लियर? इसके बाद हमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है? दिस इज ट्वाइस ऑफ x2n की. अब 2n पोजीशन किस एटम की है? विच हैव मास स्मॉल m. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन कौन सा है? थर्ड सोल्यूशन विच हैव एम्पलीट्यूड कैपिटल A. तो हमने यहाँ पर -2a एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा t माइनस k2na वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी.
क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए कि ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और टर्म क्या बचेगी, दैट विल बी माइनस ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू बीटा बी एक्सपोनेंशियल आयटा ओमेगा के आयटा के ए प्लस में बीटा बी एक्सपोनेंशियल आयटा के ए माइनस 2 बीटा ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर सिमिलरली हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करें और x2n+2 x2n और x2n+1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि ये क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम ये वैल्यू इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि हमने डेरिवेटिव निकाला किसके लिए, यहाँ देखिए ये डेरिवेटिव किसके लिए है, x2n+1 के लिए डेरिवेटिव है। तो इस डेरिवेटिव को अगर हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंगली हमने जिस तरह से थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमने ये इक्वेशन इवेल्युएट की, सिमिलरली अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। तो इन टर्म्स को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या आ जाएंगी, इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्लियर। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो ये टर्म किसकी इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा किसकी इक्वल है, दिस कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा थीटा बाय 2 के इक्वल है। क्लियर। तो ये टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू कोस के ए के इक्वल आ जाएगी। तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस इज कोस के ए। क्लियर। और अगर हम ए एम्पलीट्यूड और बी एम्पलीट्यूड के टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो यहाँ से 2 बीटा ए लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ तो हमारे पास ये ए एम्पलीट्यूड की टर्म आ गई और ये टर्म बी एम्पलीट्यूड की आ गई। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन में भी एक्सपोनेंशियल आयटा के ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा के ए को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो ये टर्म भी क्या आ जाएगी, कोस के ए के इक्वल आ जाएगी। और कोस के ए दिस हैव कनेक्टेड विद एम्पलीट्यूड ए, और इसी तरह इस टर्म को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये किसके साथ आ जाएंगी, बी के टर्म्स इकट्ठी कर ली। तो इस तरह से हमने ए और बी के टर्म्स में इक्वेशन लिख ली विच इज 7th एंड 8th। क्लियर। फर्दर अगर हम इसे सोल्व करें ए और बी के लिए तो ये क्या बनेगा, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी। So from equation 7th and 8th which have non-trivial solution only if the determinant of these coefficient of a and b is 0। कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन कोफिशेंट्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल। कि हम किस इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, दिस इज 7 and 8। तो यहाँ से ए के कोफिशेंट और बी के कोफिशेंट के अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। फर्दर इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सोल्व करें तो किस तरह से इसे सोल्व करेंगे, देखिए आप यहाँ कि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर हम ये मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, इस इक्वेशन की इक्वल। Clear. Further again, if we write, we multiply all these terms and further collected terms which are further we have collected terms of omega 4 omega square and write this equation in this quadratic form. Clear. तो हमने क्या किया, यहाँ से इस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया है। इस डिटर्मिनेंट को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस विल बी ओमेगा 4 माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ओवर में स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस 4 बीटा स्क्वायर स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू में साइन स्क्वायर के ए इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। आप फर्दर देखिए यहाँ अगर हम ओमेगा स्क्वायर को x के इक्वल सब्स्टिट्यूट करें और ओमेगा 4 को x स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ से ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, दिस ओमेगा स्क्वायर विल बी x एंड ओमेगा 4 विल बिकम x स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की आ गई है, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के, जहाँ a किसके इक्वल है, यूनिटी के, b इज इक्वल्स टू -2 बीटा 1 ओवर में कैपिटल m प्लस 1 ओवर में स्मॉल m, और c किसके इक्वल है, दिस इज 4 बीटा स्क्वायर स्मॉल m कैपिटल m इंटू में साइन स्क्वायर के a के इक्वल है।
ठीक है। यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इस इक्वेशन के रूट निकालें तो ये किसके इक्वल होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर में 2a के। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी और x किसके इक्वल है, x इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है विच इज़ दिस इक्वेशन, इसके रूट क्या आ जाएंगे, रूट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बीटा 1 ओवर में m प्लस 1 ओवर में स्मॉल m प्लस माइनस बीटा 1 ओवर में m माइनस 1 ओवर में m स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के a बाय स्मॉल m कैपिटल M अंडर रूट। क्लियर। सो इट हैव टू रूट्स, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरह से हमने इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लिया, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल गए, दो रूट्स मिल गए विच आर द डिस्पर्जन रिलेशन एंड गिव रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव टर्म्स को ओमेगा प्लस स्क्वायर लिख लिया और नेगेटिव को ओमेगा माइनस स्क्वायर लिख लिया। तो अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग बताएं तो ये यहाँ ओमेगा प्लस स्क्वायर इज़ द ऑप्टिकल ब्रांच एंड ओमेगा माइनस स्क्वायर इज़ द एकॉस्टिकल ब्रांच। So after solving the equation of motion we get the dispersion relation, and these are two equation, one is for optical branch and another is for acoustical branch. Clear. So now in our next video we will discuss about this dispersion relation and how we explain about this optical branch and about acoustical branch. इसी तरह अगर आप इस डाई एटॉमिक लैटिस के कोरक को मोनो एटॉमिक के साथ कंपेयर करें तो हमने देखा था कि मोनो एटॉमिक लैटिस के केस में हमें एक डिस्पर्जन रिलेशन मिल रहा था जो किसके इक्वल था, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2a v नॉट साइन के a बाई 2। बट जब हम डाई एटॉमिक लैटिस के लिए स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ हमें दो डिस्पर्जन रिलेशन मिले, वन इज़ द फॉर द ऑप्टिकल ब्रांच एंड अनदर इज़ फॉर द एकॉस्टिकल ब्रांच। So let's stop here, and in our next video we will discuss about these dispersion relations. Thank you students.